Okay. Very good morning, afternoon to all the students who are listening. Now, today we are continuing our lecture. Last lecture you learn about binary coded decimal numbers and gray code number. Okay, I have given you many examples. Okay, with the help of that, you understood that BCD and gray code. Okay. Now today I am going to give you comparisons between that gray and binary coded decimal number. See, okay, some slides are in front of you. Here, a comparison between the BCD and gray code is given. Okay, so keep it in mind, BCD is a weighted code because it has 8421 weight, so that's why it is also called as an 8421 code as well as weighted code. Gray code is a non-weighted code or unweighted code. Okay, so it has no weight. Okay, so that's why we say it is a unweighted code. In terms of BCD, highest 4-bit number is equivalent to डेसिमल 9. ओके, यानी यहाँ जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वह हमारा 4 बिट का और उसका इक्विवेलेंट रहेगा मैक्सिमम 9 यानी 1001. ओके, इन ग्रे कोड में आपको वहां पर नंबर मिल सकता है. ओके, वो हाईएस्ट 4-बिट नंबर रहेगा, मैक्सिमम इक्विवेलेंट वो रहेगा डेसिमल के 15 के बराबर. ओके, यानी वहां पर आपको कोड रिडक्शन या कोड लिमिटेशंस नहीं है, ओनली वहां अनवेटेड कोड है, इसके वजह से आपको वहां पर यह नंबर इक्विवेलेंट रहेगा 15 से. In terms of BCD, we have seen arithmetic operation is possible, but in terms of gray code, not possible. Okay. Generally, the application of BCD codes are BCD counter or arithmetic counter. Okay, or in arithmetic circuitry, it is most prominently adopted. But in terms of gray, generally it is adopted in speed measurement. Okay, as I told you, DC motor, AC motor, induction motor, as well as our vehicle. Okay, in that you can see the code speed measurement is carried out. Similarly, another application is it is used in analog to digital converters also. Okay, so this will be the basic comparison between your BCD and gray code. So keep it in mind, this will be the main points. Most of the points may ask in your MCQ also. Second comparison that I giving you, that binary and gray code. Okay, in terms of binary, again, binaries are weighted code, gray code are unweighted code. In terms of binary, arithmetic operations is possible. In terms of gray code, arithmetic operation is not possible. Binary code can be used to represent decimal number. Here, gray code are not possible. Cannot be used to represent decimal number. Application of binary are digital computer, digital communication systems, and in terms of gray, same usual application like A to D converter and speed measurement. Okay, these are the applications for gray code. Now, this is about the comparison between BCD, gray, and binary. Now, we go for the next one point. Okay, here we will go for the error detection and corrections. Now, question arise here, is the error correction and detection is necessary? देखो कैसा है कि हम अक्सर कम्युनिकेशन करते हैं वाया मोबाइल, ओके, वाया टेलीफोन, ओके, या फिर हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारा डाटा फाइल ट्रांसफर करते हैं या हम ईमेल ट्रांसफर करते हैं.
ओके, तो डाटा या आप वॉइस यानी डाटा कम्युनिकेशन करो या वॉइस कम्युनिकेशन करो या कोई अदर यानी इमेज ट्रांसफर या कोई अदर आप एखादा व्हिडिओ फाइल ट्रान्सफर कर रहे हो या ऑडियो फाइल ट्रान्सफर कर रहे हो. ओके, while doing that transfer you are going to transfer send that file. Okay, and another is going to receive that file. Okay, so while doing this transmission, everything is transmitted via a line, a cable, okay, a transmission line. Okay, and there may be a chances of intruder. Okay, there may be a chance of intruder. Okay, or there may be a chances of interference. इंट्रूडर बोले तो कैसा है कि कोई थर्ड वन पार्टी वहां पर वो लाइन में इंट्रोड्यूस हो जाएगी. ओके, और वो लाइन में आपका डाटा रिसीव करेगा. ओके, और डाटा ओरिजिनल जो रिसीव किया है उसे वो गार्बेज डाटा में कन्वर्ट कर सकता है, यानी उसमें कोई डाटा माल फंक्शनिंग होने के चांसेस वहां पर हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वह डाटा आप फिर से रिसीव करोगे तो आप वहां पर एरर फाइंड आउट करोगे, उसमें आप अनवांटेड मैसेज फाइंड आउट करोगे या आपको करप्टेड डाटा मिलेगा. बराबर है. सो दैट्स व्हाई अगर आपको करेक्टेड डाटा मिला तो कम्युनिकेशन फॉल्स हो गया, कम्युनिकेशन रॉन्ग हो गया. तो ऐसे सिचुएशंस में आपको वह डाटा सिक्योर करना जरूरी रहेगा, यानी सिक्योरिटी इश्यू आ गए वहां पर. बराबर है. सो दैट्स व्हाई इस तरह का सिक्योरिटी अगर आपको प्रोवाइड करना है तो सिक्योरिटी के लिए वहां पर सिक्योरिटी के एल्गोरिथम वहां आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. बट बिफोर दैट क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ यू कैन एबल टू डिटेक्ट वेदर मेरा डाटा आपके पास पहुंच रहा है या नहीं. तो ये कैसे डिटेक्ट करोगे. तो सामने आप यहाँ पर देख रहे हो भाई वीडियो, मेरा वीडियो यहाँ पर आप वॉच कर रहे हो. इमीडिएटली आपको वहां पर समझ में आ रहा है कि भाई डाटा करेक्टली रिसीव्ड हो रहा है. तो जो यूजर रहेगा अदर साइड में वो वेरीफाई करेगा कि यस डाटा इज करेक्टली रिसीव्ड और नॉट. ओके, वो अगर प्रॉपरली अगर अंडरस्टूड कर पाया तो यानी डाटा करेक्टली रिसीव्ड हो गया. या फिर वहाँ अदर वेरिफिकेशन टेक्निक भी रहती है, यानी ओरिजिनल जो मैसेज है और जो रिसीव्ड मैसेज है उसमें भी कंपैरिजन करने की टेक्नोलॉजी वहां पर अवेलेबल होती है. यानी यानी आपको क्या पता कि वो एंड पे आपको कौन सा डाटा मिल रहा है, मैं सही में जो बात कर रहा हूँ आपको रिसीव हो रही है या नहीं. सो दैट्स व्हाई वहाँ आपने जो थिंग्स रिसीव की है और जो मैंने यहाँ से ट्रांसफर की है, तो ओरिजिनल फाइल और जो रिसीव्ड फाइल है उनमें नेटवर्क के द्वारा कंपैरिजन कैरी आउट किया जाता है. और वहाँ कंपैरिजन होने के बाद आपको वहाँ समझ में आता है कि मैंने राइट डाटा रिसीव्ड किया या रॉन्ग डाटा रिसीव्ड किया. ओके, सो दिस इज अ वे ऑफ वेरिफिकेशन. तो ये वेरिफिकेशंस कैरी आउट करने के लिए हमें पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा भाई एरर कैसे आया है और उसको कैसे करेक्ट करना है. सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक अपना इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, एरर डिटेक्शंस एंड करेक्शंस. ओके, तो अभी चलते हैं यहाँ पर मैं एक एक करके पॉइंट्स यहाँ पर समझा देता हूँ. तो error detection and corrections code plays an important role in transmission of data from one source to another. Okay, the noise also gets added into the data when it transmit from one system to another. यानी वहां पर नॉइज इंट्रोड्यूस हो सकता है. नॉइज यानी एरर. ओके, जैसा हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वह नॉइज एखादा कोई इंट्रोड्यूर इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, यानी मल्टीपल केबल एक जगह से दूसरी जगह यूज होती हैं. तो एखादे हाई पावर केबल के बाजू में से आपकी डाटा केबल अगर जाती है तो भी वहां पर इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं और आपका डाटा का करप्शन वहां पर या डाटा का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है. यानी ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर इंट्रोड्यूसर ही आना चाहिए, यानी कोई थर्ड पार्टी वहां पर ही रिसीव करना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं रहता है. कभी कभी वहां कोई इंटरफेरेंस या हाई फ्रीक्वेंसी केबल के पास से अपना डाटा केबल अगर गुजरता है तो उसके वजह से भी ये डाटा करप्शन के चांसेस होते हैं. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर सेंटेंस लिखा, द नॉइज आल्सो गेट एडेड इनटू द डाटा व्हेन इट
transmits from one system to another, which causes error in the received binary data at other system. The bits of the data may change either 0 to 1 or 1 to 0 during transmission. यानी डाटा के चेंजेस होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं? डाटा के चेंजेस होने के चांसेस यहाँ पर, अगर 0 बिट वहां ट्रांसफर किया है तो 0 को 1 हो जाएगा या 1 को 0 हो जाएगा, ये इतना ही चांस रहता है। ये सिंगल बिट के द्वारा हो गया। वहां मल्टीपल बिट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल यानी 4 बिट हो सकते हैं, 2 बिट हो सकते हैं, 6 बिट हो सकते हैं, 8 बिट चेंज हो सकते हैं। वेरिएशन कितने बिट का होगा ये आपको थोड़ी पता है। ओके, सो दैट्स वाई वहां ये मेथड अपने को वहां एडॉप्ट करनी पड़ेगी। नाउ सी, इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द इंटरफेरेंस ऑफ नॉइज। ओके, क्योंकि इंटरफेरेंस के जो प्रॉब्लम है वह पॉसिबल नहीं होते हैं आप अवॉइड करने के लिए, बट इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द ओरिजिनल डाटा। यानी आपको वह केबल, डाटा केबल है, आपसे घर से निकली है और मेरे कॉलेज तक आ रही है। ओके, आप टेलीफोन लाइन के द्वारा कम्युनिकेशन मेरे से कर रहे हो, क्योंकि ये इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? थ्रू टेलीफोन। ओके, थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट थ्रू केबल आ रहा है या वायरलेस आ रहा है? अगर वायरलेस भी आता है तो भी वहां पर हवा में इंटरफेरेंस हो सकता है, एयर्स में दूसरे सिग्नल मिक्स हो सकते हैं। अगर वहां पर आपको माइक्रोवेव सिग्नल या कोई अदर सिग्नल, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा वहां सिग्नल का करप्शन अगर हो गया तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि अरे डाटा रॉन्ग हो गया। ओके, तो दैट्स वाई हम उसे अवॉइड कर सकते हैं क्या? हम उसको बाजू में कैरी आउट कर सकते हैं क्या? आपको क्या पता कि वो केबल कहाँ अंडरग्राउंड से गई है, कौन से पर्टिकुलर रास्ते से गई है? आप थोड़ी वो केबल को वहां दूर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू अवॉइड द इंटरफेरेंस ऑफ नॉइज। ओके, बट इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द ओरिजिनल डाटा। हाँ, ये बात आप कैरी आउट कर सकते हैं कि आपको ओरिजिनल डाटा कैसे मिलेगा, इसके ऊपर आप थिंक आउट कर सकते हो। सो फॉर दिस पर्पज, फर्स्ट वी नीड to detect either an error is present or not using the error detection code. ओके, आपको वहां पर ये डिटेक्ट करना है कि भाई एरर आ रहा है या नहीं। अगर एरर आ रहा है तो क्या एक्शन कैरी आउट करनी है, नहीं आ रहा है तो ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो गया, राइट? If the error is present in the code, then we will correct it with the help of error detection code. Okay, तो अगर आपको एरर आएगा तो आप उसको करेक्ट करोगे, तो वहां पर टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल रहेगी, उस टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से आप उसे करेक्ट कर सकोगे। क्वेश्चन अराइज होगा, व्हिच आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। ओके, तो एक एक करके पहले देखते हैं। पहले देखते हैं भाई एरर क्या है। ओके, एरर कैसे आता है? ओके, तो एरर आने के लिए कैसा चांस रहता है? तो व्हाट इज एरर? Error is a condition when the output information does not matches with the input information. ओके, यानी आपको जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है वह अगर आपके इनपुट इंफॉर्मेशन से मैच नहीं हो रहा है। यानी आपको डायग्राम में बताया है कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, और उसमें आपका बाइनरी सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, और वो बाइनरी सिग्नल यहाँ पर ट्रांसफर होते समय वहां बाजू में आपको नॉइज बताया, यानी वो नॉइजी हो गया। नॉइजी अगर हो गया तो 1 है या 0 है ये डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ कंप्यूटर 2 को, और उसने 1 की जगह 0 को डिटेक्ट किया और 0 की जगह 1 को डिटेक्ट किया। अगर ऐसा हो गया तो आपके यहाँ पर सिग्नल का इंटरफेरेंस आ गया। ओके, सो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन digital signal suffers from noise that can introduce error in the binary bits traveling from one system to another. ओके, तो यानी वहां पर एरर इंट्रोड्यूस होने के चांसेस है, और वह एरर होने के चांसेस वहां अगर इंट्रोड्यूस हो गए मींस 0 बिट में चेंजेस टू 1 और 1 बिट में चेंजेस टू 0। दैट्स व्हाई you will find the data is corrupted.
Okay, so this is a error. So now we will go for the understanding of error detection and correction techniques. So in the market, you can find these are the different error detections and correction technologies. Okay, most of the engineers are adopting all these four technologies. Okay, first one is parity code, second one is checksum, third one is cyclic redundancy check, and fourth one is Hamming code. Okay, but out of these four, only four technique is mentioned in your curriculum. But I am giving you slight brief idea about all these techniques one by one. Okay, so you will be aware of this, क्योंकि जो आगे डाटा सिक्योरिटी में एंट्री करते हैं तो उनको ये टेक्नोलॉजी का वहां पर फिर से डेप्थ स्टडी रहता है. ओके, आपको आएगा आगे के जो कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें ये टेक्नोलॉजी का एरर डिटेक्शन और करेक्शंस के लिए सेपरेट चैप्टर्स भी रहेंगे. ओके, तो आप उनके द्वारा ये पर्टिकुलर मेथड्स अल्गोरिथम्स के द्वारा उसे वेरीफाई कर सकोगे. ओके, but now I'm giving you some brief idea about all these technologies. Okay, one by one. So here first we understand what is error detecting code. The error detecting codes are the codes used for detecting the error in the received data bit stream. समझ में आ रहा है सेंटेंस? एरर डिटेक्टिंग कोड्स आर द कोड्स. ओके, वो एक पर्टिकुलरली कोड है, ऐसा कोई ऐसा दूसरी चीज नहीं है, उसमें 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन है. ओके, वो कोड ही रहेगा. ओके, इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द एरर. ओके, आप उसके द्वारा एरर डिटेक्ट कर सकोगे. वो एक स्टैंडर्ड कोड रहेगा. ओके, तो जनरली ट्रांसमिशन साइड में आपको वहां क्या भेजा है, वह आपका जो डाटा रहेगा वह डाटा इन इवन फॉर्म में भेजा गया या ऑड फॉर्म में भेजा गया, ये वहां पर डिटेक्ट किया जाएगा. अभी क्वेश्चन आ रहा है होगा, सर इवन क्या है, ऑड क्या है? यानी कैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं. ओके, सी, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 0110. ओके, 0101. ओके, now tell me how many ones are here in the data. So your answer will be, sir, there are total 4 ones. Okay, अगर आप उसमें काउंट करोगे तो वहां पर टोटल 4 ones है. 4 ones बोले तो 4 is a number is going under even category or odd category. Your answer will be 4 is even number. Getting? So that's why here even number code of is transferred from transmitter to the receiver side, and at the reception side the receiver will check whether even number of ones are there or not. यहाँ ध्यान में रखना, कोई किसी के माइंड में आ सकता है कि कोई बोलेगा सर फिर जीरो क्यों नहीं काउंट करते हैं? देखो, जीरो हैज एनी इंपॉर्टेंस, वी विल नॉट कंसीडर जीरो, ओनली वी विल कंसीडर हाईएस्ट वैल्यू 1. ओके, तो उसमें से एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे यहाँ, वो है 1. तो जो डाटा ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ये वहां ट्रांसमीटर के द्वारा डाटा ट्रांसमिट होते समय उसमें ट्रांसफर किया जाएगा. यानी टोटल 8 बिट के साथ ये 9th बिट भी वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं. ओके, वहां मार्क और स्पेस में डाटा इनकैप्सुलेट होता है. मार्क बोले तो 1. ओके, और उसके बाद आपका डाटा 0110. ओके, देन 0101, ये हो गया आपका डेटा. ओके, यानी पहले क्या हुआ, मार्क का ट्रांसफर हुआ. मार्क इज इंडिकेटिंग
बिगिनिंग ऑफ डाटा, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बिट यहाँ पर ऐड ऑन होता है, उसे हम स्पेस कहते हैं। ये स्पेस दो स्पेस भी रह सकते हैं या सिंगल स्पेस भी रह सकता है। ओके, तो टोटल कितने बिट का कोड हो गया ये? टोटल 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। ओके, और यहाँ पर अगर वह टोटल 11 बिट का ही कोड फॉर्मेट होगा या 12 बिट का कोड का फॉर्मेट होगा, तो वहां पर इवन के लिए या ऑड के लिए 1 का इंक्लूजन किया जाता है। इवन इज मार्क as 0, okay, and odd is marked as 1. Okay, so that's why here your data will get transmitted in this fashion. Okay, then the receiver will receive this data and it capture which will be the parity, which will be the parity. Okay, so that's why this last bit is considered as a parity. It may be 0 means even, it may be 1 means odd. Okay, so if it is 0, even number of ones are transmitted in the data from the transmitter, and that data get received in the receiver, and the receiver will check whether data is correctly received or not. Okay, so this fashion is adopted for receiving of your data and correction of your data. Okay, so here, in case, here we are going to understand error detecting. So that's why, see, error detecting codes encode the message. Okay, error detecting codes encode the message before sending it over the noisy channel. Okay, यानी आपका जो एरर डिटेक्टिंग कोड है वो क्या करेगा? एनकोड करेगा डाटा को। ओके, यानी एक सिक्योर कोड में उसे परफॉर्म करेगा। ओके, इनकोड कर देगा, अंडरस्टैंडेबल मैनर में उसे कन्वर्ट कर देगा। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। द एनकोडिंग स्कीम is performed in such a way that the decoder at the receiving can find the error easily in the receiving data with higher chances of success. You got the second sentence? I'm just reading again. The encoding scheme is performed in such a way that the decoder at the receiving can find the error easily in the receiving data with a higher chances of success. यानी हम उसको पहले ही बता देंगे कि भाई यहाँ ये डाटा मैं भेज रहा हूँ, ये डाटा में पर्टिकुलरली इस तरह का टोटल नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, और उसके द्वारा रिसीवर साइड उसे रिसीव करेगा, और रिसीविंग साइड में वह रिसीवर अंडरस्टैंड करेगा कि ये पर्टिकुलर डाटा में इतने नंबर ऑफ वंस थे, और वो डिटेक्ट करेगा कि यस, डाटा इज करेक्टली रिसीव्ड और नॉट। इन केस डाटा अगर करेक्टली रिसीव्ड नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में रिसीविंग साइड फिर से डिमांड कर सकता है ट्रांसमीटर को डाटा सेंड करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वंस मैच नहीं हुए, तो वहां रिसीवर साइड डिटेक्ट करेगा एरर इज रिसीव्ड, एंड रिसीवर री ट्रांसमिशन के लिए डिमांड करेगा ट्रांसमीटर को, और ट्रांसमीटर फिर से वह डाटा रीसेंड करेगा। ओके, सी व्हाट आई सेड। Whenever a message is transmitted, it may get scrambled by noise or data may get corrupted. बराबर? अगर डाटा ट्रांसमिट हुआ, उसमें कोई डाटा का स्क्रम्बलिंग हुआ या डाटा को एरर आया, टू अवॉइड दिस वी कैन यूज एरर डिटेक्टिंग कोड, which are additional data added to a given digital message to help us to detect if an error occurred during transmission of a message
A simple example of error detecting code is parity check. ओके, मैंने जो सेंटेंस आपको ऊपर में कहे वो डिस्कशन यहाँ पर फिर से लिखा है. ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी इसमें? ओके, तो जब यहाँ इस तरह की प्रोसेस होगी तो वहाँ एरर का डिटेक्शन होगा. ओके, ये जनरली 1 या 2 बिट के लिए एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है. अगर आप मैक्सिमम एरर के लिए जाओगे तो वहाँ अदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी. ओके, नाउ सेकंड थिंग, पैरिटी कोड. अभी पैरिटी कोड होता क्या है वो देखते हैं. इन पैरिटी कोड we add one parity bit either to the right of the LSB or left to the MSB to the original bit stream. आ गया सेंटेंस यहाँ. पैरिटी बिट या पैरिटी कोड में आपको जो मैंने ऊपर बताया वहाँ आपका जो भी डाटा है LSB साइड या MSB साइड में वह पैरिटी कोड का बिट वहां ऐड होता है. ओके, और उसके द्वारा आपको वहां डाटा का ट्रांसमिशन करना पड़ता है. ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पैरिटी बीइंग चोजन, टू टाइप्स ऑफ पैरिटी कोड्स आर पॉसिबल, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी. आ गई बात यहाँ पर. यानी आपको पैरिटी में इवन नंबर ऑफ पैरिटी रहेगी या ऑड नंबर ऑफ पैरिटी रह सकती है. यानी ऑड नंबर ऑफ बिट्स. पैरिटी बोले तो हाउ मेनी नंबर ऑफ bits are present. See, I am just again retelling. Okay, I am just again repeating. See, what is your data stream or bit stream? Bit stream is like this: 0 1 1 0 0 1 0 1. How many number of ones are present here? Total number of ones are 4. So that's why here parity is even. Okay, getting this point? So that's why here whatever parity code that I mention here, this will be very similar to that. कोई डाउट भाई अभी यहाँ पर? ओके, अगर नहीं समझा फिर से तो भी कोई डाउट नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए. आई विल टेल यू, या कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, आई विल टेल यू. ओके, नाउ next point we will go for understanding features of error detecting codes. ओके, अभी फीचर्स क्या रहते हैं इसमें, आपको क्या टेक्नोलॉजी या क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं. सी, these are the following features of error detections code. Okay, first, these codes are used when we use message backward error corrections technique. ओके, अभी यहाँ पर नाम आ गया टेक्नोलॉजी का. ओके, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी यहाँ यूज होती है, अल्गोरिथम यूज होता है, तो वो अल्गोरिथम यहाँ उसका नाम लिया है बैकवर्ड एरर डिटेक्शन टेक्निक. ओके, फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन. नाम याद रखो, काम याद रखने की अभी जरूरत नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको a feedback message is sent by the receiver to inform the sender whether the message is received without any error or not at the receiver side. ओके, यानी जब ट्रांसमीटर कोई डाटा ट्रांसमिट करेगा तो वो ट्रांसमिट होने के बाद रिसीवर उसे कैप्चर करेगा, रिसीव करेगा, और वंस इट इज रिसीव्ड इट विल वेरीफाई whether data is correctly received or not. Once it is correctly received, okay, by the receiver, okay, the receiver will send a feedback message to the sender, okay, whether the message is received without any error or with any error. Okay, so if it is received without any error, then no problem. अगर वहां पर एरर आ गया तो ऐसे सिचुएशन में वहां ट्रांसमीटर फिर से रिसीव करेगा. तो इस वजह से
If the message contain error, the sender retransmit the message. Okay, this is one of the features that will be present in the error detections code. In error detections code, in fixed size block of bits, एक सेकंड in error detections code, in fixed size block of bit, the message is contained. ओके यानी जब आप यहाँ मैंने बताया आपको कैसा है कि 11 बिट या 12 बिट या 13 बिट का कोड जनरली अक्सर वहाँ ट्रांसफर होता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। यानी आपको कितने बिट भेजने हैं? 8 बिट। ऐसा नहीं कि भाई 80 बिट भेजेंगे। ओके आपको 8 बिट के साथ साथ यहाँ पर पैरिटी है, स्टार्ट बिट है, एंड बिट है। स्टार्ट यानी मार्क और एंड यानी स्पेस। ओके तो स्टार्ट बीट, एंड बीट, पैरिटी बीट, ओके और डाटा बीट्स, ये कुल मिला के टोटल आपके सामने वहाँ टोटल 11 या 13 बिट या 12 बिट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कोड। ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ फिक्स साइज का ब्लॉक यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। In this, the redundant bits are added for correcting and detecting the error. Okay, यानी यहाँ पर कोई redundant bits है तो redundant bits यहाँ पर add हो सकते हैं। Okay, keep it in mind that name. Okay, now I'm not going to clarify all the things, only just remember the features. Okay, in case if you go in depth for learning these error detection code, that time this terminology may comes. Okay so these codes involve checking of the error, no matter how many error bits are there and the type of error. Okay so remember कितने बिट वहां पर अफेक्ट होते हैं ये पता नहीं, बराबर है। तो ये वहां इंटरफ्रेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन वहां जो आपने एरर करेक्शन की टेक्निक अडॉप्ट की है वह टेक्निक्स के द्वारा ही आपको ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ आपको कितने नंबर ऑफ बिट्स वहां इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओके नाउ यहाँ पर आपको मेथड्स देके रखे हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यहाँ पर एज एरर डिटेक्शन कोड के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ पैरिटी चेक, checksum, CRC. Okay, these are the error detection techniques. Okay, तो ये टेक्नोलॉजी वहां पर प्रेजेंट रहेगी। Now everyone got the features of error detection code. Okay, now I am going for further points. Okay, so see, I am telling you here about the parity checking of error detections. Okay, how you can able to check the parity checking of error detections. See, it is the simplest technique for detecting and correcting errors. Okay, yani parity is one of the simplest technique among all the error detection technique, and it is a primary way of checkup. ओके यानी कैसा कि आपको बुखार आ रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए आप जस्ट पहले टच टेक्नोलॉजी यूज करते हो, बाद में थर्मामीटर टेक्नोलॉजी, बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही यहाँ पर पैरिटी चेकिंग of error detection is the simplest technique for detecting and correcting error. Okay, the MSB of an 8-bit word is used as parity bit and remaining 7 bits are used as data, okay, or message bit. यानी यहाँ पर MSB of the 8-bit word is used as the parity bit. ओके यानी इसमें जो MSB रहता है वो MSB bit यहाँ यूज होता है टू टेल वेदर द इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ पैरिटी है। देखो टेक्निक अलग रहती है, कोई 8 बिट का इनक्लोजर करता है, कोई 7 बिट का इनक्लोजर करता है, क्योंकि 7 बिट विल आल्सो रिवेल द नंबर
Okay, because of the 7 bits you can able to tell here how much or what will be the number. Okay, so D0 to D6 are sufficient for in telling the number. Okay, and 8 bit, that is P bit, is used for parity. It will help you to reveal how many number of ones are there in the 7 bit data. Okay, the parity of 8 bit transmitted word can be either even parity or odd parity. So see, even parity means the number of ones in the given word including parity bit should be even, like 2 4 6 8. Okay, like 2 4 6, 8 nahi aega, only 2 4 6 will be there. For odd parity means the number of ones in the given word including parity bit. Okay, it should be odd, means 1 3 5. Okay, generally 1 3 5 are considered as an even parity point of view. Okay, getting this? Hmm. Now this is about the parity checking of error detection. Okay, this is about how you can understand the parity. Now I'm telling you here how you can use parity bit. Okay, see, यूज ऑफ पैरिटी बिट, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं एक पेज के ऊपर. सी, okay, you can find in one slide only. Now here, use of parity bit. The parity bit can be set to 0 or 1 depending on the type of parity required. ओके, यानी ये पैरिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी? टोटल नंबर ऑफ वंस. टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं आपको, और उसके ऊपर आपको ये डिसाइड करना है कि वह इवन आएगा या ऑड आएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर इवन पैरिटी this bit is set to 0 or 1 such that the number of ones bit one bit in the entire word is even. Okay, so it is shown in your figure 1. Okay, so that's why even parity point of view here. Okay, if you look left hand figure, okay, in A, okay, here you can find 1001011. Okay, mean how many number of ones are there? Total number of ones are 4. So that's why total number of ones are 4. So that's why here the P bit is 0. Okay, similarly, in right hand side, it is shown like this. Okay, 100. Okay, 1011. Again, there are total number of ones are 4, but here, okay, 1 is written. Okay, means here, see, what read the sentence. For even parity, this bit is set to 1 or 0 such that number of one bit is in the entire word is even. ओके, तो एंटायर वर्ड में कितने यहाँ पर बीट आपके पास है, तो उसके ऊपर यहाँ पर 1 और 0 बीट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई आपको इस एग्जांपल में बताया है कि भाई यहाँ अगर प्लेसिंग ऑफ वंस, ओके, यहाँ प्लेसिंग ऑफ वंस आपकी यहाँ टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पर अगर इवन है तो इस तरह उसे नैरेट किया जाएगा. ओके, similarly for odd parity this bit is set to 1 or 0 such that the number of one bit in the entire word is odd. ओके, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आपको राइट आंसर दिया है. ओके, सी इन फिगर बी 1001011. ओके, तो वहां पर आपको यहाँ बताया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ वंस आर देयर, टोटल 4. ओके, सो दैट्स व्हाई total 4 is a even point of view it should be 0 but 1 is written. Okay, means it is not correct. Okay, so that's why right hand side things will be given. Okay, right hand side is telling you here 1000110. Okay, it tells you here how many number of ones. Total number of ones are 3. Okay, so that's why if it is 3, okay, uh, okay, so if it is 3 it is odd, means it should be 1. Okay, so that's why again it is correct, it need corrections. Okay, so that's why this is the use of parity. Okay, so just
keep it doing corrections here. Okay, so first figure, okay, in A is correct. Okay, and first top letter left, and second, here you need here at this moment, here you need logic 1 bit at parity, so it is correct. Okay, only these two cross में यहाँ पर आपको correct रहेगा. Then we will go for the next one point. Okay, but wait.